Thank you, sir, for doing the honor. This is the first time that both the Rajashri, both the ministries, Ministry of Ayush and Health Ministry coming together so that the people-centric integration. Yes, sir. Not Atithi, the host of the entire program, was facilitated to have the integration with Ayurveda and conventional medicine. Honorable Dr. Dr. Mansukh Mandaviya ji, Minister of Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizers, our own Minister, Minister of Ayush, Sri Sarbananda Sonowal ji, Honorable Union Minister of Ayush and Ports and Shipping and Waterways, Dr. Munjapara Mahendra Bhai Kalubhai ji, Honorable Minister of State, Minister of Ayush, and Dr. Bharti Pawar, Minister of State of Health and Family Welfare, Secretary Ayush Rajesh Kotecha ji, DG HS Dr. Goyal ji, Medical Superintendent, all the additional Medical Superintendent of MS, Deans of All India Institute of Ayurveda, faculty, scholars, and all the media representatives. It is a proud privilege and honor for All India Institute of Ayurveda that Safdarjung is hosting us and provided us this space for running the integrated health center through Ayush, with the vision and mission to create the holistic treatment protocol, and this integration is patient-centric integration. लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, पेशेंट को यहाँ से आके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ना जाना पड़े, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के पेशेंट के यहाँ आने के लिए दिक्कत ना हो. So this is under one umbrella, and All India Institute is also tertiary care, and it is the Center of Postgraduate Research and Training Center, which is Center of Excellence to provide the role model for others to follow. And similarly is the Safdarjung Hospital, where care with compassion, the model what we have established, with the main objective is to initiate co-location of practitioners of Indian system of medicine to provide joint multidisciplinary care, panchakarma therapies, that is biopurification and concomitant medications, yoga, lifestyle, and other medications. So thank you, sir, for providing us the infrastructure, and it is, हम ये कहते हैं कि 6000 पेशेंट को इंटीग्रेशन से हमने अभी 8 जुलाई से शुरू किया और थेरेपी दी, 3000 लोगों ने की. सफदरजंग हॉस्पिटल और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हमें जगह दी. हम ये चाहते हैं कि हम अपने काम से दिल में भी हमें जगह दीजिए, क्योंकि फ्यूचर ऑफ द मेडिसिन इज इंटीग्रेशन. एंड आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर सर to please bless us with your wording, sir. Because अवसर के लिए हमारे बड़ी कमठ और कपिल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मंजुपाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमें ये इंटीग्रेटिव डिपार्टमेंट यहां शुरू करने के लिए जगह दी. और आप सबको मालूम है, हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निर्देश के मुताबिक हम दोनों मंत्रालय इस इंटीग्रेटिव सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं, और इसके फलस्वरूप आज ये उभर के आए हैं. इसलिए मैं मानता हूं कि अगले दिनों में ऐसे ही एम्स में भी हमारे कल चर्चा हुई. हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश के मुताबिक डायरेक्टर एम्स ने हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ बातचीत की और एक समझौता पर सहमत हुई. तो मुझे लगता है ऐसे हम जमीनी हकीकत से जोड़ के हमारे देश की जनता को हम निष्ठापूर्वक समर्पित भावनाओं से सेवा करते जाएंगे. और जैसे हमारे तनुजा नासर ने बताया, इस डिपार्टमेंट में क्या क्या व्यवस्था रखा गया है, तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों के लिए ये व्यवस्था खड़ा की गई है. और अगले दिन में मेरा मानना है कि निश्चित रूप से ऐसे ही देश भर में मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन दोनों को हम आगे बढ़ने का काम करते रहेंगे. क्योंकि आज मैं ज्यादा वहां बोलते हुए क्योंकि हमारे मनसुख भाई जी का भी पार्लियामेंट में ड्यूटी है, मेरा भी है, तो मुझे अभी निकलना होगा. बार बार फोन आ रहा है. आप सबको फिर से मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप ऐसे ही सहयोग करते रहिएगा कि अगले दिनों में हमें
बहुत कुछ करना है देश के अंदर, और आप लोगों को ये बात बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज हेल्थ सेक्टर में जो प्रगति हासिल की है, और इस सिलसिले में मनसुख भाई ने और भारती बहन ने जैसे मेहनत की है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम भविष्य में भी ऐसे ही मिलकर हम अपने मकसद जनता के लिए, समाज के लिए पूरा करने के लिए हम निष्ठापूर्वक काम करते रहेंगे। इसी शब्दों का साथ फिर से आप सबको प्रणाम देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। खास करके हम सब धन्यवाद देंगे, क्योंकि लगातार हमारे मीटिंग हो रहे थे, पिछले साल भर में अनेक मीटिंग्स हुई और हमेशा यही दोनों मिनिस्टर ने, माननीय मनसुख भाई ने और माननीय सोनोवाल जी ने हमेशा यही एक एजेंडा रखा कि हमने इंटीग्रेटेड मेडिसिन को लेकर आगे बढ़ना है काम। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारे देश का ज्ञान है, विज्ञान है, संस्कृति है, उससे हमें विश्व कल्याण के उद्देश्य से सार्थक कराना है। और उस उद्देश्य के साथ आयुर्वेद का महत्व, जो आज एक प्रभावी माध्यम है, उससे पारंपरिक चिकित्सा का हम उपयोग करें। और मुझे ये जानकारी देते हुए खुशी होती है कि सफदरजंग एक ऐसा हमारा पुराना हॉस्पिटल है जो 1942 में स्थापित हुआ, और जहां उसके इतिहास में 204 बेड थे, आज वो सबसे ज्यादा बेड भारत भर में, अगर आज वो रिकॉर्ड पे जा रहे हैं तो 1500 से अधिक बेड आज हमारे यहाँ पे सफदरजंग में है। टर्शरी केयर के लिए बेस्ट सर्विसेज हमारी सफदरजंग हॉस्पिटल में दी जाती है। एनुअली हमारे 10 लाख से भी ज्यादा ओपीडी पेशेंट्स आते हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ दिल्ली या हमारे पड़ोसी राज्य नहीं तो पड़ोसी देशों को भी सफदरजंग अस्पताल ने हमेशा सेवा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हमारे आयुर्वेदिक इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर के इस उद्घाटन पर मैं आशा करती हूँ कि जरूर इसका उपयोग हमारे आगे आने वाले दिनों में अनेक पेशेंट्स को अच्छा साबित होगा। एक अच्छी ओपीडी के माध्यम से, पंचकर्मा की यूनिट से और डाइटरी कंसल्टेशन के माध्यम से, जैसे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम अभी सिर्फ डिसीज के बारे में या हेल्थ का प्रॉब्लम होने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो वेलनेस में हम ज्यादा काम करेंगे। तो फोकस ऑफ आवर गवर्नमेंट इज वेलनेस। तो इस वेलनेस के दृष्टि से आयुर्वेदा का आज महत्व ये बहुत ही कोरोना के काल से अच्छा साबित हुआ है, और आयुष मंत्रालय के माध्यम से हमारे पारंपरिक भारतीय प्रणालियों के इस गहन ज्ञान को भी पुनरुज्जीवन के माध्यम से इस विकास की दृष्टि से सुनिश्चित किया है। Communicable and communicable disease. There is an increasing interest that the integration of medical system may be useful for the prevention and treatment of disease. The growing use of integrative medicine has stimulated the scientific community to investigate into the policy implication to integrate the therapeutic approach available in a scenario. In this context, Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji has mentioned that people are realizing the benefits of Ayurveda and its role in boosting immunity. The current attempt of Integrative Medicine Center at Safdarjung Hospital is a timely considered step towards generating scientific evidence for the approaches of integrative medicine which hold promise for future of healthcare and medicine. Ayurveda recommends preventive measures for improving immunity through health lifestyle in addition to its unique therapeutic approaches. This would require a revision of healthcare that shift from a standardized approach to personalized prevention and treatment to an integrated system of network. All such noble initiatives will ultimately lead towards the formulation of an integrative health policy, one nation, one health system under a vision and in the direction of Vasudhaiva Kutumbakam, means one earth, one family and one future. इंटीग्रेटिव मेडिसिन का एक डिपार्टमेंट का प्रारंभ हो रहा है। वैसे तो मुझे बताया गया कि हम फॉर्मल लॉन्चिंग आज कर रहे हैं, लेकिन शायद 3-4 महीने से बन के तैयार था, और पहले चरण में सब भी हमारे यहाँ सतत मेहनत करने वाले हमारे डॉक्टर्स
उसमें से ज्यादातर लोगों ने विरेचन करवा लिया, ट्रीटमेंट करवा लिया स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए। वेलनेस इस समय की मांग है। अपने आप के प्रति, अपने स्वयं के हेल्थ के प्रति जागरूक रहना इस देश की वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत आवश्यक है। कोई भी देश समृद्ध देश तब हो सकता है जब देश के नागरिक स्वस्थ हो। और पहली बार प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंट के साथ हेल्थ को जोड़ा। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। समृद्ध राष्ट्र के लिए देश के हर नागरिक स्वस्थ रहे, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए आज तक हमारी ट्रेडिशन यही थी कि हम बीमार हुए, हम हॉस्पिटल गए। जी नहीं, हम बीमार ही ना हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं? मोदी जी ने विचार किया कि वेलनेस बहुत आवश्यक है और 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए एक कार्यक्रम घोषित किया। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब अनाउंसमेंट हुआ था तब कहा गया था कि दिसंबर 2022 के अंत तक हम 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रिएट करेंगे। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर वेलनेस के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। हेल्दी रहने के लिए क्या हेल्दी फूड होना चाहिए, उसके लिए सेशन आयोजित किया जाएगा। वहां योगा अभ्यास किया जाएगा, वहां स्क्रीनिंग किया जाएगा। ऐसी कई एक्टिविटी, 17 टाइप की एक्टिविटीज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आज हो रही है। 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज देश के नागरिक की वेलनेस को सुदृढ़ करने के लिए काम में जुटे हुए हैं। वैसे ही देश में मॉडर्न मेडिसिन हो, ट्रेडिशनल मेडिसिन हो या कोई भी टाइप की मेडिसिन हो, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। कोई डॉक्टर एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। एक बात जो तय हो तो ऑल टाइप ऑफ मेडिसिन सिस्टम एक दूसरे के पूरक कैसे बने। हमारे पास इतनी बड़ी विरासत है, हमारे पास ट्रेडिशनल मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इतनी पुरानी चिकित्सा पद्धति है जो हमारे शास्त्रों ने हमें विरासत में दी है। उसका लाभ मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिलकर कैसे कर सकते हैं ताकि नागरिक स्वस्थ भी रहे और बीमार हुआ हो तो कोई डॉक्टर बड़ा नहीं है, कोई डॉक्टर छोटा नहीं है। भाई हर लोग, क्या एलोपैथिक का आविष्कार किया गया तो दुनिया के लोग स्वस्थ रहे उसके लिए ही किया गया है ना, स्वस्थ करने के लिए किया गया है ना। तो क्या ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेद मेडिसिन क्या लोगों को स्वस्थ करने के लिए नहीं बनाई गई है? सभी मेडिसिन, सभी व्यवस्थाएं नागरिकों को स्वस्थ करने के लिए बनाई गई है, निर्मित हुई है। तो लेकिन एक दूसरे को उपयोगी हो सकती है। मकसद इंटीग्रेटिव मेडिसिन का यह है, सफदरजंग अस्पताल में एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन का सेंटर हो। कोई जगह पे हमारे एलोपैथिक डॉक्टर को लगे कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए हमें आयुर्वेद पद्धति से उपचार कराने की आवश्यकता लग रही है, वो यहां रिफर करें। हमारे कोई आयुर्वेद डॉक्टर को ऐसा लगे कि जिस टाइप का डिसीज है उसके लिए उसको तुरंत ही रिजल्ट लाना आवश्यक है, तो उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। एक दूसरे डॉक्टर, एक दूसरी मेडिसिन ऑफ सिस्टम, दोनों इंटीग्रेट होके आपस में बात करके, नहीं केवल डॉक्टर बात करे, डेटा भी बात कर सकता है, प्रमाण भी बात कर सकता है, रिजल्ट भी बात कर सकता है। यहाँ ये ट्रीटमेंट हुई थी, ये रिजल्ट आया था। आपस में इंटीग्रेटिव करके क्या हम बेस्ट लोगों के हेल्थ केयर के लिए कोई सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। मेडिसिन के डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए सभी
हमारी डॉक्टर कम्युनिटी को मैं अभिनंदन देता हूं। आपने जो मेहनत की है, एफर्ट किया है, आपका जो कमिटमेंट है, मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाले दिनों में देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।